شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا مہم، بیچز ایڈمن NECCI میں پیش ہوں گے۔ مختلف سوشل میڈیا پیجز کے ایڈمنز کو آج NCCI نے طلب کیا تھا۔ شرجیل میمن اور بیٹے کو مبینہ طور پر میر رضا کیس سے جوڑنے کی کوشش۔ شرجیل میمن کے وکیل کے ذریعے NCCI میں درخواست دائر۔ سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وراثی اور عبید قریشی طلب کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز، اس معاملے پر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں، آج نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ان 4 افراد کی پیشی ہے جنہوں نے شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا پیجز پر مہم چلائی تھی۔ شرجیل میمن اور ان کے بیٹے راول شرجیل کو ایک گیسٹ ہاؤس کا نام لے کر میر رضا کیس سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے خلاف شرجیل میمن نے NCCI کو ایک درخواست دی تھی۔ اس کے بعد NCCI نے آج 11:30 بجے ان 4 جو مختلف پیجز چلانے والے ایڈمن ہیں ان کو طلب کیا ہے، اور ان میں جو ہیں سید عبداللہ ہے، امین قریشی ہے، بلال وارثی اور عبید قریشی ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں NCCI میں پیش ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی مختلف سوشل میڈیا پیجز پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، معافی بھی طلب کی، لیکن چونکہ NCCI کو شرجیل میمن کی درخواست پر آج کارروائی کرنی ہے، اب تک چونکہ پیشی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ NCCI نے کیا کارروائی کی ہے۔ البتہ یہ تمام لوگ جن کو طلب کیا گیا تھا، یہ جو ہے کراچی میں گلستان جوہر میں جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا دفتر ہے، وہاں ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ تمام دستاویزات، ڈیوائسز اور سوشل میڈیا پروف جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آ جائیں۔ تو یہ پیش تو ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے، یا FIR ہوتی ہے یا معافی نامہ دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان سے بیانات دیے جاتے ہیں۔ یہ اب کارروائی جو ہے اس وقت جاری ہے اور یہ لوگ NCCI میں موجود ہیں۔ جی عاجز، یہ بتائیے گا، جیسا کہ شرجیل میمن کے خلاف جو یہ مہم چلائی گئی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا واقعی کیس سے کچھ تعلق ہے؟ اور جن لوگوں کے یہ پیجز ہیں، جو ان کے ایڈمنز ہیں، جن کو طلب کیا گیا ہے، ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ کیوں یہ مہم چلائی گئی تھی؟ سوشل میڈیا پر ہی موقف آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ انہی پیجز پہ ایک کراچی سٹوریز نامی پیج ہے، ایک مہاجر کمیونٹی نامی پیج ہے، اور کچھ پیجز ہیں۔ تو انہوں نے انہی پیجز پر معافی کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کہ انہوں نے شرجیل میمن اور ان کے بیٹے راول کو جو ہے جو میر رضا کیس میں ایک گیسٹ ہاؤس کے ساتھ جوڑا ہے، جو ان کی غلطی ہے، وہ اپنی غلطی پہ نادم ہے اور وہ معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا موقف آفیشیلی سوشل میڈیا پیجز پر آ چکا ہے، لیکن شرجیل میمن کی جو درخواست ان کے وکیل کے ذریعے NCCI کو گئی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے، شرجیل میمن کا یہ موقف تھا کہ اس پورے قصے سے نہ ان کے خاندان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان کے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کو روکا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ موقف تھا شرجیل میمن کا۔ اب اس پہ پھر NCCI نے کارروائی کی۔ لوگ تو زیادہ ہیں، لیکن 4 لوگوں کے جن کے پیجز مینشن کیے تھے شرجیل میمن نے اپنے درخواست میں، ان 4 پیجز ایڈمن کو آج بلایا گیا ہے۔ آج اس وقت ان کی پیشی جو ہے NCCI میں چل رہی ہے۔ جی عاجز، یہ بتائیے گا کہ جن 4 لوگوں کو طلب کیا گیا ہے، اگر ان کی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ثابت ہوتی ہے، اگر یہ سزا کے قرار پاتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کس طرح سے ہوگی؟ کیا انہیں جرمانہ کیا جائے گا؟ کیا سزا ہوگی ان کے؟ لیکن 2 طرح کے ان کیسز میں ہوتا ہے۔ ابھی تو ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے داخل۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شرجیل میمن کو انہوں نے معافی طلب کی ہے، اگر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، کیس سے دستبردار ہوتے ہیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن دوسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ پروسیجر کے مطابق ان کے خلاف آج ان کے بیانات لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے، جب تک NCCI میں کوئی FIR درج نہیں ہوتی تب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو اگر معاملہ FIR جاتا ہے اور FIR درج ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر سزاؤں کا معاملہ جو ہے یہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن FIR درج ہونے کے بعد ان کی گرفتاری ممکن ہے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بھی FIR داخل نہیں ہوئی ہے۔ جی عاجز جمالی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاجز، بہت شکریہ۔
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगिर हड़ताल जारी है। मुतालिबात पर अमल दरामद ना होने के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम खत्म ना करने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमती यकीन दहानी अपनी जगह, लेकिन जब तक मुतालिबात पर अमली पेशरफ्त नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुतालबात के हक में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। मुल्कगिर हड़ताल जारी, पहिया जाम तवील होने से तिजारती और माल बरादरी की सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात पर अमल दरामद तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स करियर एसोसिएशन मलिक शेर खान का कहना है कि हुकूमत ने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल बेशतर मुतालबात को जायज करार दिया है, तहम सिर्फ मुतालबात तस्लीम करना काफी नहीं, जब तक उन पर अमली तौर पर अमल दरामद नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। लॉलीपॉप डाल नहीं, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं होगा, जब तक नोटिफिकेशन हमें मिलेगा नहीं, तब तक ये पूरा पाकिस्तान बंद है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल जारी और सारी रहेगी। साबिक जनरल सेक्रेटरी के GDA गुलाम आफरीदी के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा 6 माह तक टोल टैक्स में मजीद इजाफा ना करने की यकीन दहानी कराई है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि टोल टैक्स को जून 2024 की सतह पर वापस लाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और यकीन दहानियों के बावजूद अब अमली इक़दामात जरूरी हैं। उनके मुताबिक मुतालबात पर अमल दरामद तक मुल्कगीर हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। KPT में हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात जारी। मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल छठे रोज भी बरकरार। मुतालिबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। यकीन दहानियों पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात हुकूमती वफ्द के सामने पेश कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं KPT में हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात जारी। मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल छठे रोज भी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की सरबराही में जो गुड ट्रांसपोर्टर के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और यहाँ जो ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल छठे रोज भी बरकरार है। ट्रांसपोर्ट का मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। और यहाँ पे ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उवैस चौधरी कहने यकीन जाने पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हुकूमत के साथ संजीदा और नतीजा के मुज़ाकरात चाहते हैं। मुतालबात तस्लीम करके अमली इक़दाम किए जाएँ और कहा कि मुल्क की पहिया जाम हड़ताल से मईशत को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के ख्वाह हैं। कराची पोर्टा से मुज़ाकरात के दौरान ट्रांसपोर्टर का मौक़िफ़ हुकूमती वफ़द के सामने पेश कर दिया गया है। सिर्फ हड़ताल खत्म करने के लिए नहीं, मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मोहम्मद उवैस चौधरी ने जो इजलास में कहा कि मुतालबात तस्लीम न होने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग जुनैद अनवार चौधरी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, चेयरमैन KPT और चेयरमैन पोर्ट कासिम शरीक हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन जो मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। सदर और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर ऑनर एसोसिएशन जो मोहम्मद उवैस चौधरी और उनके साथ दीगर वक्त जो है इस वक्त मौजूद है। जो कि आप मीटिंग में देख सकते हैं कि इस वक्त जो तमाम लोग सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि जो 6 रोज से जारी जो हड़ताल है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ फेडरेशन और 7 इंडस्ट्री जोन है कराची के, सब ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हड़ताल खत्म की जाए। कोई इंडस्ट्री का काम माल रॉ मटेरियल जो है पोर्ट से इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच रहा, जो माल तैयार है वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा पा रहा है, जिससे मईशत को भारी नुकसान हो रहा है। और ये फौरी तौर पर सनतकारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि बैठ कर मुशावरत करके फौरी तौर पर गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म की जाए, क्योंकि इससे यौमिया बुनियाद पर करोड़ों रुपए का मईशत को नुकसान हो रहा है। साथ ही ये नुकसान पहुंच रहा है जो एक्सपोर्टर का माल तैयार है, जो कि पोर्ट पे जाकर एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन वो गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से माल पोर्ट पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तमाम इंडस्ट्री जोन हो गया, फेडरेशन हाउस हो गया, कराची चैम्बर हो गया, उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर यह हड़ताल गुड ट्रांसपोर्ट के खत्म कराने का मुतालबा किया है। अब आज जो अहम बैठक हुई है, इससे पहले भी वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने बहुत सारे मसाइल हल किए और यही देखा जा रहा है कि पावरफुल के साथ ये जो इजलास चल रहा है। तो उम्मीद है कि जो इस्लामाबाद के इजलास में नहीं हुआ है तो आज यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि 6 रोज से हड़ताल थे। अब देखा जाए गुड ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे ऐलान करके बैठे हुए कि जब तक हमें यकीन दहानी नहीं होगी, इन रिटर्न लिख के नहीं दिया जाएगा, हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो यकीनी तौर पर जुनैद अनवार चौधरी और वफाकी वजीर हैं जो वज़ीर आज़म के करीब भी हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ रब्ता करके उम्मीद यही की जा रही कि आज कुछ ना कुछ फैसला होगा। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की सेंट पैट्रिक हाई स्कूल आमद हुई है। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी तकरीब के मेहमानी खसूसी थे। गवर्नर सिंध ने बच्चों और इंतजामिया के हमरा आज़ादी का केक काटा। यौम आज़ादी पर बच्चों ने मिली नगमे और शानदार टैबलो पेश किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की सेंट पैट्रिक हाई स्कूल आमद हुई है। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब भी मुनक्कद की गई है। आजिज़ जमाली से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज़ अपडेट कीजिएगा इस पर। जी हाँ, देखें, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी सेंट पैट्रिक स्कूल पहुंचे हैं और सेंट पैट्रिक जो कि कराची का कदीमी स्कूल है, उसी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर ने स्कूल इंतजामिया और बच्चों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा है। यौम आज़ादी के मौका पर बच्चों ने मिली नगमे और शानदार टेबलोज भी पेश किए हैं। इस मौका पे गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने खिताब भी किया और कहा कि इस्लाम, कायदीन और बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का मकसद आज की नस्ल को आज़ाद मुल्क में सुकून से सांस लेने का मौका देना था। आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना हम सबकी कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आगे ले जाना आप बच्चों की जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में आपने ही पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। तो गवर्नर ने बच्चों से खिताब किया और मिलकर जश्न आज़ादी का जो है वो केक भी काटा है। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध सेक्रेटेरिएट में जश्न आज़ादी की पुरवकार परचम कुशाई तकरीब। चेयरमैन PND बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह ने परचम लहराया। सेक्रेटरी जनरल एडमिन समेत आला अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। तकरीब में कौमी तराना और मिली नगमे भी पेश किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट में जश्न आज़ादी की पुरवकार परचम कुशाई तकरीब मुनक्किद हुई है। चेयरमैन PND बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह ने परचम लहराया है। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आज़ाद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के पुरमुसरत मौके पर सिंध सेक्रेटेरिएट में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन के मनसबदी बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह ने परचम कुशाई की। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गुलाम अली ब्रह्मानी, सेक्रेटरी खुराक गुलाम अब्बास नाइक समेत दीगर महकमों के अफसरान और सरकारी मुलाजमिन ने बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब के शुरा का कौमी परचम जो है कौमी जोश व जज्बे के साथ वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया गया। तकरीब में जो है कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना और मिली नगमा भी पेश किया गया। इस हवाले से जो तकरीब में तहरीक पाकिस्तान की रहनुमाई और शहदा की जो अजीम कुर्बानी उन पर खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए भी जो है खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस हवाले से तकरीब में जो है खास तौर पर जो सरकारी मुलाजिम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध जो आज के कई मसलों से जज के बाद जो है सैयद नजम अहमद शाह जो चेयरमैन तक की मसले बोर्ड है, उन्होंने परचम कुशाई की। जी आज़ाद नोहरी हो तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वतन अजीज़ का 79वां जश्न आज़ादी मनाने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। शहर भर में सब्ज़ हलाली परचम, बैजेज, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि पाक अफवाज की भारतीय जारियत के मुंह तोड़ जवाब ने इस बार जश्न आज़ादी की खुशियों को मज़ीद दोबाला कर दिया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। बिल्कुल, वतन अजीज़ पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी जो है वो चंद लम्हों की दूरी पर है और इस सिलसिले में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी शहरियों का जोश व खरोश जो है वो उरूज पर है और इस मरतबा जो है वो जश्न आज़ादी का लुत्फ़ दोबाला कर दिया है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का जवाब देकर उनके तैयारे गिराकर इस वजह से इस जश्न आज़ादी में जो है काफ़ी जोश व खरोश माजी के मुकाबले में हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर ख़रीदारों का रश दिखाई देता है और वो लवाजमात जो कि 14 अगस्त के सिलसिले में जश्न आज़ादी के सिलसिले में इस्तेमाल होते हैं, उस पर आवाम की बड़ी तादाद का जो है वो रश दिखाई देता है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कैसी चल रही है 14 अगस्त की ख़रीदारी और लोगों में जोशो खरोश कैसा है? बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है। इस वजह से जो पाक आर्मी का जो कारनामा था, जो इनके 6 जहाज़ गिरा है, इसकी वजह से बड़ा जोशो खरोश है। जबकि इस महंगाई के दौर में इतनी गरीब आवाम में जो हालत चल रहा है, लेकिन वो इस खुशी के चक्कर के अंदर, इस खुशी की
खुशी के अंदर, जोशो खरोश के अंदर वो ना महंगाई को देख रहे हैं, ना किसी को, भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं और खूब ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अच्छा, इस बार हमने ये देखा है कि वो अशिया जो साल भर लोग दूसरी अशिया फ़रोख्त करते हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो जश्न आज़ादी से रिलेटेड सामान की जो है वो फ़रोख्त करने में लगी हुई है। ये बताइएगा कि दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, क्या ख़रीदार भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, और माल की फ़रोख्त कैसी हो रही है? माल की फ़रोख्त तो बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये बच्चों का, बड़ों का, इसमें सब शामिल हैं खुशी के अंदर। खुशी के अंदर ना खुशी छोटे की होती है ना बड़े की होती है। वो जो ये पाक आर्मी ने जो कारनामा करा है हमारी मुसल्लह अफवाज ने, इसकी वजह से डबल जोश व खरोश हो गया है, और इस जश्न आज़ादी पे ख़रीदो फ़रोख्त बहुत हो रही है और हर दुकानदार खुश है, और पब्लिक भी पूरे सुबह फजर की अजानों तक मार्केटें फुल चल रही थी, और आज तो पूरी रात हो जाएगी, कल शाम तक ख़रीदारी चलेगी। बिल्कुल, अमूमन जो है वो ईद त्यौहार के मौके पर कहा जाता है चांद रात, लेकिन इस मरतबा जो है वो जोश व खरोश और वलवला शहरियों का अपने उरूज पर है। दुकानदारों का भी ये कहना है कि आज चांद रात भी हो सकती है, यानी पूरी शब जो है वो जश्न आज़ादी के सामान की जो है वो फ़रोख्त उरूज पर रहेगी। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर दुकान पर ख़रीदारों का रश दिखाई दे रहा है। कोई जो है सब्ज़ हिलाली परचम पर मबनी मलबूसात ख़रीदने में मसरूफ़ है, कोई बैच ख़रीद रहा है, कोई दीगर लवाज़मात की तरफ तवज्जो किए हुए। जी, 79 साल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क और पाकिस्तान और ये जामिया और आप और आपकी बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे हजारों साल जिएंगे। मगर कभी सोचा कि एक ऐसा शख्स जिसके अपने बच्चे थे, खुशहाल जिंदगी था, अपनी बीवी थी, बीवी को बीमारी होती है, बीवी अल्लाह को प्यारी हो जाती है, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बेटी उनके उसूलों पे नहीं है, बेटी की शक्ल ना देखी, उन्हें पता था कि मुझे टीबी हो गया है, और अगर ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। इलाज नहीं करवाया। इलाज कब शुरू करवाया? जब पाकिस्तान मारूदे वजूद में आ गया, और उन्होंने सिर्फ 1 साल जिया, 1 साल, और हम और आप सैकड़ों साल जी रहे हैं। सोचो उसके बारे में, उसकी ख्वाब के बारे में। उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये पड़ोस में जो म्यूजिक बज रहा है, ये कव्वाली से नहीं बना है मुल्क, ये मुल्क वोट के पर्ची से बनाया है, ये मुल्क जिन्ना ने बनाया है, उसके साथियों ने बनाया है। ये नारा है डिवाइड। मुझे दुख हो रहा है कि एक ही यूनिवर्सिटी में 3 प्रोग्राम, क्या कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि तुम तकसीम दर तकसीम हो जाओ? कभी नहीं। और अगर तकसीम होते तो आज गुलामी करते हिंदुत्व की। तुमसे इबादत का हक छीन लिया जाता, तुमसे तालीम का हक छीन लिया जाता। कभी सोचा है कौन हो? मुफ्त में मिल गया मुल्क। सोचा है हजारों लोग, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। थे हमारे पास पीएचडी, थे हमारे पास ग्रेजुएट, नहीं था। ये कल मैंने एक बात की थी, हमारे पास ये भी है, बुलाओ इसको, इनके लिए सबसे पहले ताली बजाओ। ये बहुत जबरदस्त आदमी है, सारे मुकर्रिर एक तरफ, ये अकेले एक तरफ। ये हम सबका हिस्सा ले गए। तो कल मैं कह रहा था, ये भी बड़े यूट्यूबर हैं, देखता रहता हूं मैं इनको, तो मैं कह रहा था कि कराची पोर्ट से लेके गुरु मंदिर तक एक भी मस्जिद नहीं थी जहां आप अल्लाह के हुजूर 1947 से पहले सजदा सुजू कर सकते। लोगों ने कहा, निहाल हाशमी ने कहा पूरे सिंध में एक मस्जिद नहीं था।
ये यूट्यूबर बड़े अच्छे बड़े काबिल लोग होते हैं। किसी ने कहा सिंध में नहीं था, किसी ने कहा कराची में नहीं था। ओ भाई इतना सा क्लिप का हिस्सा ना निकालो। मैंने कहा था केमाड़ी से लेके गुरु मंदिर तक अगर कोई था तो चैलेंज करे मुझे, तो तारीख को ना मरोड़ो। याद करो उन लोगों को जिन्होंने शहरों में बिजली रोशन किए। भूल गए आप में से कितने लोगों को मालूम है हु वाज अबू बकर हलीम? बताएं, मालूम है तो हाथ उठाएं। द फाउंडर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। यहां अब्बा हलीम की फोटो होनी चाहिए थी, यहां तिरमिजी साहब की होनी चाहिए थी, या डॉक्टर महमूद हसन की होनी चाहिए थी। मत करो पाकिस्तान को तकसीम। डॉक्टर साहब की भी बड़ी इन्होंने तारीफ कर दी। और मेरा खून जो है ब्लड प्रेशर मुझे नहीं है, पहली बार 500 से ऊपर चला गया। इन्होंने कहा जमीयत जमात टाउन। अबे बाबा आज पाकिस्तान का दिन है, न जमीयत का है न जमात का है। आज मेरे कायद का दिन है, आज गुलामी की जंजीर तोड़ने का दिन है, आज शहीदों का दिन है, आज अबू बकर का दिन है। कहां से आ गई ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी? अबे भाई इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो उधर तबला बजा रहे हैं। अरे क्या मिरासियों ने पाकिस्तान बनाया था? कोई डांस कर रहा है, डांस से पाकिस्तान बना था? नहीं नहीं नहीं, जरा गौर करना। और ये जो मुनीबुज़्ज़फ़र और आपके एमपीए ने कहा, कमाल की तकरीर की। इन्होंने कहा सोचो कश्मीर को, गजा को। ये जो मेरी बेटी खड़ी है, ऐसी बेटियां होती हैं, सहमी खड़ी होती हैं, पता नहीं होता है कि उसकी इज्जत महफूज होगी या उसके भाई की जिंदगी। और बड़े आए पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले, बड़े आएंगे बड़े जाएंगे। इनके दादा गवर्नर सिंध निहाल हाशमी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया। शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हलाली परचम, बैजिस और दीगर जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी बच्चों के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताहम महंगाई के बायस ख़रीदारी का हुजम ज़रूर मुतासिर हुआ है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में अब बस एक रोज़ बाकी रह गया है और ख़रीदार जो है वो जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां ले रहे हैं। कोई बैच ले रहा है तो कोई कपड़े ख़रीद रहा है। इस वक्त भी शाहराह फैसल पर स्टॉल लगे हुए हैं, मेन रोड पर स्टॉल लगा हुआ है। ख़रीदार बैच लेने के लिए इनसे हम बात करेंगे। भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने 14 अगस्त के लिए क्या क्या ख़रीदारी की? मैं झंडे ले रहा हूँ, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह भी ले रहे हैं और ये बैज वगैरह भी ले रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ मुझे ये बताएं कि आप हर साल 14 अगस्त मनाते हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल कोई ख़रीदारी में या महंगाई ज़्यादा हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं? जी महंगाई तो बढ़ गई है, तो सबको पता है महंगाई है। आवाम इसलिए तो घर से भी नहीं निकल रहे। घर से भी नहीं निकल रहे। आप बिल्कुल जिस तरीके से आप स्टॉल्स पे देख सकते हैं, कैमरामैन अगर अजलान दिखाएं कि खूबसूरत से यहाँ पर अगर हम बात करें लड़कियों के लिए तो यहाँ पे बैचेस हैं, बैंड लगे हुए हैं और छोटे छोटे से ब्रेसलेट हैं जो कि छोटी छोटी बच्चियों के लिए। इसी के साथ उनके क्लिप्स हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज यहाँ पे मौजूद हैं। स्टॉल्स मुंतज़िम भी यहाँ पर हैं। आप मुझे बताइएगा कि ख़रीदारी में कितना फ़र्क आ रहा है? बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई, आप लोगों को कीमतें ज़्यादा में मिल रही हैं, तो आप लोगों को कीमतें असल अभी तो काम ही नहीं है ना। पहले तो फिर भी काम होता था, अब तो काम ही नहीं है। कोई लेने नहीं आता, पूछ के चला जाता है। अब एक दिन बाकी रह गया है, तो एक दिन कैसे? अभी हम परेशान है कि ये सामान निकल जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो उस तरीके से खरीदारी नहीं हो रही जिस तरीके से हर साल होती है। लोग आते हैं, रेट पूछ कर चले जाते हैं, इनका काम उतना नहीं चल रहा है। लेकिन इसी के साथ जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो लोग जिनको जश्न आज़ादी मनाने, क्योंकि पूरे मुल्क जो है पूरा मुल्क बनाते हैं, सारे कौम बनाते हैं, यहाँ पे खूबसूरत सी चीज़ें भी लगी हुई हैं। तो लोग जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं और ख़रीदारी जोश खरोश से कर रहे हैं। जी, सिंध पुलिस ने नया नाज़माबाद जश्न आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आस्कानी स्पोर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सैयद मोहम्मद तलहा ने इनामात तकसीम किए हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा।
जी मैं मौजूद हूँ सर नया आज़ाबाद फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर आज जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल अख्ताम पजीर हुआ और सिंध पुलिस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टाइटल अपने नाम किया। आस्कानी स्पोर्ट्स को आप लोगों ने शिकस्त दी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। हम पहले कोच से बात करें, कैसी रही ओवरऑल परफॉर्मेंस? सिंध पुलिस आजकल हॉकी का टूर्नामेंट जीत चुकी है पिछले दिन और फुटबॉल भी जीत गई, क्या हो रहा है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तमाम टीम को मुबारकबाद। मेरी तरफ से हारने वाली टीम को भी ज़ाहिर है उसने बड़ी कोशिश की जीतने के लिए और ख़ास से हमारे पुलिस ने बड़ी एफर्ट की टीम के लिए। सर असल में जब से हमारे स्पोर्ट बोर्ड दोबारा से बना है, चेयरमैन हमारे पीर में शाह साहब आए तो उन्होंने स्पोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जान डाल दी है डीआईजी साहब ने। जी हाँ, डीआईजी साहब नहीं जान के अलावा जिस तरह कराची की ट्रैफिक को मैनेज करने में लगे हुए, इसी तरह स्पोर्ट को तमाम को मैनेज करने में लगे हैं, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, नेटबॉल हो, बास्केटबॉल, तमाम के अंदर वो अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। तो ये उनकी एफर्ट है और उनकी कोशिश है ताकि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये सेकंड पिछले भी जीता था और ये भी जीते हमने पिछले। अच्छा, क्या कहेंगे कितनी मेहनत थी, कब से तैयारी कर रहे थे इस इवेंट के लिए? हम इस इवेंट के लिए तो वैसे हमारे अपनी भी इवेंट आ रहे उसकी भी तैयारी कर रहे थे, तो इसकी भी इन्विटेशन आई तो हमने कहा चले ये भी एक मौका है हमारे लिए। तो वैसे तो मैं एक 1.5-2 महीने से हमारा कैंप खुद भी लगा हुआ है पुलिस का। आगे कौन से इवेंट है इसके लिए तैयारी करेंगे? इसके लिए हमारा अपना पुलिस का इंटर यूनिट का इरादा है जो सितंबर में इंशाल्लाह। पहले हॉकी का खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आपकी तरफ से अच्छा खेले? हमारी तो तमाम खिलाड़ी माशाल्लाह मेरी तरफ से सारे अच्छे खेले, जो खेले ज़ाहिर है वही नहीं खेले, जो नहीं खेले वो भी अच्छा खेले मेरी तरफ से, मेरी टीम का हिस्सा ही है सारे। और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए तमाम टीम को। और कल असल में इन्होंने बहुत हार्ड मैच खेला, बहुत हार्ड, क्योंकि ज़्यादा मेहनत और वर्क ज़्यादा किया इन्होंने, तो इसलिए वजह से आज थोड़ा सा मैच 20 तक चला गया। जाना नहीं चाहिए था मैच, हमें जो है मैच के दौरान ही विन करना चाहिए था। लेकिन बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद बहुत बहुत। सुना आपने पुलिस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, सिंध पुलिस ने, और एक बार फिर चैंपियन बनी और इनकी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में अच्छा खेलें और मुस्तकबिल के जो इवेंट है उसकी भी तैयारी की जा रही है और उनका कहना था कोशिश के बड़े जो मुकाबले हैं उसकी भी तैयारी बेहतर हो सके। महकमा कॉलेज एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम डीजे कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हैं। तकरीब में कौमी परचम कुशाई, मिली नगमों और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार किया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आज एक पुरवकार तकरीब जो है वह सजाई गई है। जश्न आज़ादी के 400 मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो देखने को नज़र आते हैं। कौमी परचम आवेज़ा किया गया है और वतन की खुशबू से ये पूरी जगह जो है वो सरशाद दिखाई देती है। सुबह वज़ीर तालीम, बहुत शुक्रिया आपको, जश्न आज़ादी की भी मुबारकबाद। सर, क्या आपकी खिताब था, क्या जोश और जज्बा है आज इन तमाम तलबा व तालिबात में? आप तो इन तालिब इल्म में घुल मिल भी गए हैं, सर क्या कहेंगे? जैसे आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। यकीनन आज का दिन जो है, कल का दिन जो है 14 अगस्त, आज 13 अगस्त में हम खड़े हैं, कल 14 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ यही कल का पाकिस्तान है। हम इनसे अगर डिस्कनेक्ट होंगे तो हम कैसे पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। मैं समझता हूँ, मेरे हमेशा ये ख्वाहिश रही है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों से पूछूँ असल स्टेक होल्डर ये है, मैं नहीं हूँ। हम सारी तनख्वाह लेते हैं इनके नाम पे, इनको सुनना है, ये क्या चाहते हैं। यही कल का पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कल यूनाइट करना है, मजबूत करना है, खुशहाल करना है, दुनिया में नाम रोशन करना है, तो ये करेंगे जो कल आने वाली जो है। तो मैं इसलिए इनसे ही मुखातिब हो रहा था। हम नॉर्मली हमारे सरकारी जो फंक्शन होते हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि अफसर साहिबान, मिनिस्टर साहिबान आते हैं, विराजमान होते हैं, अपने बड़े बड़े खुतबे देते हैं, कुछ लिखे हुए, कुछ रटे हुए, और फिर वो भी समझते हैं नीचे बैठे वाले की क्या गुफ्तगू हुई। मैं भी 14 अगस्त के बचपन से लेके इवेंट्स में शिरकत करता आया हूँ। जब भी ये साहिबान आते थे एक रटी रटाई बात करके चले जाते थे, हमें कोई सुनता ही नहीं था। असल तो मुहब्बे वतन हमें बनना था ना, अब इनको बनना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट इन बच्चों को इंटरेक्ट करना, इनको पाकिस्तान के साथ जोड़ना, इनको हमारे कल्चर के साथ जोड़ना, इनको अपने मुस्तकबिल के साथ जोड़ना, यही 14 अगस्त का मैनिफेस्टो होना चाहिए कि आज के बाद जो 14 अगस्त आएंगे, इसके बाद आएंगे, तो वो इनके तुफैल आएंगे और वो खुशहाली आएगी तो इनके तुफैल आएगी। नारे लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुबह वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी यौम आज़ादी थर डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से रवाना होगी। आज़ादी ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई थर और पाकिस्तान बॉर्डर खोखरा पार तक जाएगी, जहां 14 अगस्त को खसूसी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद होगी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी के रंग सिंध की सकाफत की खुशबू, तारीखी विरसे की सैर और थर के दिलकश मनाज़िर। सिंध हुकूमत की खुसूसी यौम आज़ादी थर डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से अपने सफर पर रवाना हो। जश्न आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई थर और पाकिस्तान बॉर्डर खोखरा पार तक पहुंचेगी। मुख्तलिफ स्टेशन पर ट्रेन के शुरका का शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। ट्रेन में 165 से जायद मुल्की व गैर मुल्की सयाह सवार हैं जो सफर के दौरान सिंध के तारीखी, सकाफती और सयाहती मकामात से भी लुत्फ अंदोज होंगे। शुरका मुख्तलिफ मकामात पर आवाम में कौमी परचम भी तकसीम करेंगे, जबकि 14 अगस्त को पर्ची जी वेरी के मुकाम पर खुसूसी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जहां आज़ादी ट्रेन के शुरका भी जश्न आज़ादी में शरीक होंगे। सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि आज़ादी ट्रेन पूरे सिंध की सकाफत के रंगों की नुमाइंदगी करेगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में अमन के किरदार को आगे बढ़ा रहा है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदों को भी अहम पेशरफ करार दिया। नया मुआहदा जो हमारा हुआ है तुर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ पहले ही था, तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान दुनिया में किसी टाइम में लोग कहते थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, अब आप देखते हैं कि वो मुल्क जो पीस करा रहा है पूरी दुनिया में, आज उसका पासपोर्ट काफ़ी मुल्कों ने तो ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया। सूबाई वजीर का कहना था कि सिंध में मजहबी सयाहत के भी मुतादिद मकामात मौजूद हैं, जबकि आज़ादी ट्रेन 14 अगस्त को थर में जश्न आज़ादी मनाई। ये लोग जितने भी हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं वो वहाँ पे परचम कुशाई करेंगे और रात को आज 14-12 के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम भी उधर है। ये आज़ादी ट्रेन महज एक सफर नहीं बल्कि सिंध की सकाफत, तारीखी विरसे और पाकिस्तान से मोहब्बत को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम ने जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है, जबकि तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें अब तक की जाने वाली तफ्तीश का जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद मिराज अख्तर से जानते हैं। मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में कत्ल होने वाले नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात जो हैं वो अब तेज़ी से जारी हैं और इस हवाले से आज जो है DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में फिर से अहम उस कमेटी का इजलास होगा, जो कि कमेटी इनके कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई थी, क्योंकि पहले बहुत सारे लूज पोल सामने आए थे, पुलिस की नाकामियाँ सामने आई थी, MLO की नाकामियाँ सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई और अब जो है वो तफ्तीश को जो है वो उसका दायरे-कार भी वसी कर दिया गया है और तफ्तीश अब तेज़ी के साथ जारी है। इस हवाले से जो मालूमात हासिल हुई हैं तफ्तीश हुकाम से, उनके मुताबिक जो जिस जगह पर इनकी बॉडी मिली थी मीर रज़ा की, उसके अतराफ़ के इलाके की जियो फेंसिंग जो है वो कंप्लीट कर ली गई है, मुकम्मल कर ली गई है। उसमें कुछ मुश्किलात का सामना आ रहा था टीम को, लेकिन बहरहाल उस जियो फेंसिंग के मरहले को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। उसके साथ साथ जो इनकी स्मार्ट वॉच थी और इसके साथ जो इनका मोबाइल फ़ोन था उसको भी NCCI के हवाले किया जा रहा है। NCCI उसमें मज़ीद तफ्तीश करेगा। अभी तक हवाले किए जाने की मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन जो तफ्तीशी काम और तफ्तीशी ज़राए बताते हैं NCCI को उसकी मीर रज़ा की जो स्मार्ट वॉच थी वो भी फराम कर दी गई है और उसका आईफोन भी फराम कर दिया गया, जिससे तफ्तीश में और मदद मिलेगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तफ्तीश चल रही थी वो भी अभी तक जारी है और इसमें सबसे जो अच्छी बात नज़र आ रही है वो ये है कि इस तहकीकाती कमेटी से और इस पुलिस टीम से जो मीर रज़ा के वालिद हैं और उसके अहल खाना है वो हमें काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि तफ्तीश जो है बिल्कुल शफाफ तरीके से की जा रही है और जल्द ही जो इसमें मुलविस अनासर हैं उनको मंजर आम पर लाया जाएगा, जिसके बाद ये केस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसका हल जो है बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा। जी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे का नाम कंट्रोल लिस्ट से ना निकालने का मामला, अदालत ने आइंदा समात पर DG FIA समेत इमिग्रेशन हुकाम को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। देखिए, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे थे अवाब अलवी, उनका नाम कंट्रोल लिस्ट में डालने के मुतालिक एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिस पर समाअत हुई। अदालत में उनके वकील ने बताया कि जो डॉक्टर अवाब अलवी का नाम कंट्रोल लिस्ट में था
19 फरवरी 2026 को अदालत उसका नाम निकालने का हुक्म दे चुकी थी, लेकिन ताहाल उनका नाम कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकाला गया। जब वो 7 अप्रैल को श्रीलंका जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया और उन्हें कहा गया कि उनका नाम कंट्रोल लिस्ट में है, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया। तो आज उस पर जो समाअत हुई तौहीन अदालत की, अदालत ने उस पर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। हुकाम पर DG FIA को अहकामात दिए हैं कि 2 हफ्ते के बाद इसकी समाअत है, उस पर वो खुद आकर रिपोर्ट पेश करेंगे उनका नाम क्यों नहीं निकाला गया। साथ साथ अदालत ने 2 हफ्ते के बाद DG FIA समेत FIA के डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन हैं, उन्हें भी तलब किया है कि वो अदालत में आकर जवाब दें कि उनका नाम अदालती हुक्म के बावजूद क्यों नहीं निकाला गया। जी। शफीक मोड़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सिविल इंतजामिया पर हमले का मुकदमा, मुल्ज़िमान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। समनाबाद थाने की हदूद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर पुलिस और इंतज़ामिया पर हमला करने का मुकदमा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्ज़िमान की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई है। इन मुल्ज़िमान में होटल मालिक हाशिम, ज़िशान और दीगर मुल्ज़िमान शामिल हैं। 27 ज़ात मुल्ज़िमान हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था। अदालत में पेश करके उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए हैं और 15 अगस्त को दलाइल तलब कर लिए गए हैं। याद रहे इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमात हैं थाना समनाबाद में दर्ज किए गए थे, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई थी। मुल्ज़िमान के हमले से जो है वो SHO भी ज़ख्मी हो गए थे। जी। पोर्ट कासिम स्पोर्ट्स पॉलिसी पर वज़ीर बहरी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास, स्पोर्ट्स पॉलिसी को नए तकाज़ों के मुताबिक बनाने की हिदायत। पोर्ट कासिम में जदीद मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं पोर्ट कासिम स्पोर्ट्स पॉलिसी पर वज़ीर बहरी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स पॉलिसी को नए तकाज़ों के मुताबिक बनाने की हिदायत की गई है। पोर्ट कासिम में जदीद मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम होगा। बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जान लेते हैं। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, पोर्ट कासिम की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर वज़ीर बहरी उमूर की अदालत में एक अहम इजलास हुआ, जबकि स्पोर्ट्स पॉलिसी को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक असर नौ मुरतब किया जाएगा। जबकि वफाकी वज़ीर जुनैद अहमद चौधरी का कहना था कि पोर्ट कासिम में जदीद मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। खिलाड़ियों की तरक्की, तरबियत और कोचिंग को तरजीह दी जाएगी। खिलाड़ियों के इंतखाब का अमल शफाफ और मेरिट पर मबनी होना चाहिए। तमाम बंदरगाहों के लिए यकसा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने की तजवीज़ जो है वो इस इजलास में पेश की गई, जिसमें टैलेंट हंट कैम्प के जरिए बासलाहियत खिलाड़ी तलाश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर सहूलियात और महारत पॉलिसी का हिस्सा बनाई जाएंगी, जबकि ट्रांसपोर्ट और पोर्ट कासिम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम तश्कील दी जाएगी। जी बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की परवाज़ों के लिए अहम हदायत जारी, आज आने वाली परवाज़ों को इजाफी फ्यूल रखने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परवाज़ों के लिए नोटम जारी कर दिया। 14 अगस्त की मुश्कों के बायस परवाज़ों को फ़िज़ा में इंतज़ार करना पड़ सकता है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। देखा जाए, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी किया, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने और जाने वाली परवाज़ों के हवाले से अहम हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है नोटम में कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने वाली तमाम परवाज़ों को आज 13 अगस्त को इजाफी फ्यूल साथ रखने की हिदायत जारी की गई है। और नोटम में ये भी कहा गया कि 14 अगस्त की मशकों के सिलसिले में जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों को फिजा में इंतजार करना पड़ सकता है। नोटम के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग में ताख़ीर के बायस तमाम तैयारों के कप्तान इजाफी ईंधन लाजमी रखें। नोटम में यह वाज़ेह किया गया कि तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है, ताकि जो इस्लामाबाद आने वाली जो और जाने वाली परवाज़ें हैं वो इस पर अमल दरामद करें। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान के मजमूई कर्जे जून 2026 में 83,642 अरब रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। एक माह के दौरान हुकूमती कर्जों में 1,687 अरब रुपए जबकि एक साल में 5,754 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुकामी और बैरूनी दोनों कर्जों में इजाफा हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। कर्जों का पहाड़ मजीद बुलंद, हुकूमती कर्ज 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2026 में हुकूमत के मजमूई कर्जों में माहाना बुनियादों पर 2.10% जबकि सालाना बुनियादों पर 7.40% इजाफा हुआ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2026 के अख्तिताम पर हुकूमत पाकिस्तान के मजमूई कर्जे
83,642 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक माह में हुकूमती कर्जे 1,687 अरब रुपए जबकि एक साल के दौरान 5,754 अरब रुपए बढ़ा। आदादोशुमार के मुताबिक जून 2026 तक हुकूमत का मुकामी कर्ज 54,472 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। एक माह के दौरान मुकामी कर्ज में 1,329 अरब रुपए जबकि एक साल में 4,969 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जबकि जून 2026 तक हुकूमत का बैरूनी कर्ज 24,201 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक माह में बैरूनी कर्ज 359 अरब रुपए जबकि एक साल के दौरान 784 अरब रुपए बढ़ा। मजमूई कर्जों में सबसे बड़ा हिस्सा मुकामी कर्ज का है जो 54,472 अरब रुपए है जबकि बैरूनी कर्जे 24,201 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। यूं जून 2026 के इख्तिताम पर हुकूमत पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 83,642 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया जबकि एक साल के दौरान कर्जों में 5,754 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन की जानिब से फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में पाकिस्तान के मुनफरिद समर फ्लावर शो का इनेकाद। फूलों की 1,000 से ज़ायद इक़साम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। जश्न आज़ादी के मौका पर सजाई गई 3 रोज़ा फ्लावर शो के इफ्तिताह से कबल ही शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 का मरकज खेल और सकाफत रंग बरंगे फूलों से सज गया। पाकिस्तान के मुनफरिद समर फ्लावर शो में फूलों की 1,000 से जायद इकसाम नुमाइश के लिए पेश कर दी गयी। नुमाइश के बाकायदा इफ्तिताह से कबल ही शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों ने फूलों और पौधों के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारे और इंतजामात को सराहा। कहा, शहर तेजी से कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है जिसके बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ऐसी फूलों की नुमाइश शहरियों को हरियाली की अहमियत उजागर करने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की तरगीब देती है। और ये एक नेचर की ब्यूटीफुल थिंग भी है, हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोक भी सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा है कि बंदा इस चीज़ को अट्रैक्ट होके किसी चीज़ को एक्वायर कर रहा है। तो ये एक जो ये फ्लावर शो है काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है और कराची में तो ख़ास तौर पे जहाँ हर तरफ पोल्यूशन है, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा एक एफर्ट लिया है जो इस पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया है। डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ के मुताबिक 3 रोजा समर फ्लावर शो जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों के लिए एक खूबसूरत तोहफा है जिसका मकसद आवाम को सेहतमंद और सरसब्ज माहौल की जानिब राग़िब करना है। दरअसल शजरकारी के हवाले से तो गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल प्लांटेशन करता है। कोई मखसूस टाइम नहीं है कि जिसमें जो प्लांटेशन करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कराची की जो नीड है पूरे पाकिस्तान में वाहिद टाउन है गुलबर्ग टाउन जो समर फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करता है और जश्न आज़ादी से मंसूब करता है। ये गुलबर्ग टाउन का खासा रहा है कि फ्लावर शोज़ के हवाले से गुलबर्ग टाउन का अपना एक मुकाम है। 1,000 से ज़ायद वैरायटीज़ हैं यहाँ इस फ्लावर शो में। मुंतज़िमीन का कहना है कि फ्लावर शो के जरिए शहरियों को खूबसूरत माहौल फराहम करने के साथ शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दिया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।